Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone. Let's continue the magnetic effects of electric current. Okay, class 10th. In the previous part, what we have seen? Fleming's left hand rule, Fleming's right hand rule, what do they signify? Electricity and magnetism are related to each other. We have already been through this. Alright, so let's see. Now, if we see a motor, what is a motor? It is generator here. I am asking, what is a motor? Motor is which takes up electrical energy and converts it into mechanical energy. It is electric motor. Similarly, electric generator क्या होता है? Generator क्या करता है? It is based on the principle of electromagnetic induction, जो हम previous videos में देख चुके हैं. EMI. Okay. EMI means electromagnetic induction. Electromagnetic induction क्या है? जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन होता है, मैग्नेटिक फील्ड के वेरिएशन की वजह से वोल्टेज डेवलप होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है एंड इंड्यूस करंट इज इंड्यूस्ड और करंट इज इंड्यूस्ड, इसीलिए उसको इंड्यूस करंट बोलते हैं. ओके, सो व्हाट डू अ जनरेटर डू? इट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अपोजिट टू द मोटर्स. इलेक्ट्रिक मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है. सिमिलरली in the opposite sense, what do a generator do? It converts mechanical energy into electrical energy. When a generator completes the process, दो तरह के करंट प्रोड्यूस होते हैं. One is AC and one is DC. One is alternating current, one is direct current. Okay, so first let's see the diagram, then I will explain this to you. Here, this is AC and this is DC. ये इनका graphical representation है. On what? Here we have taken current, here we have taken time. This is current, this is time. For AC you can see it is varying with respect to time. Okay, in form of waves. कौन सा वेव है ये? इसको क्या बोलते हैं? Sine wave, because it is varying as sine wave and it is DC. It is constant with respect to time. So सबसे पहला AC keeps changing with respect to time. DC remains constant with respect to time. तो अगर हम यहाँ पे एक साइकिल कंप्लीट जब करता है, ये यहाँ तक की बात करें, यहाँ से ये एक साइकिल है. First part is positive, other part is negative. Okay, positive then negative, it has completed one cycle. तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? एक वर्ड हम देखेंगे अभी यहाँ पे. फ्रीक्वेंसी. What is frequency? We must have heard कि in India AC is supplied at this amount of frequency. Frequency हर्ट्ज में डिनोट होती है. किसमें? हर्ट्ज. डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना है? डीसी क्या डायरेक्शन चेंज कर रहा है? नो. तो डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना है? 0 हर्ट्ज. बट एसी हैज फ्रीक्वेंसी. कितना फ्रीक्वेंसी? विल टॉक अबाउट. होता क्या फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज ऑपोजिट ऑफ टाइम पीरियड. और टाइम पीरियड किसका? एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड. एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगा, ये एक साइकिल है, इसको कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो टाइम पीरियड है. फ्रीक्वेंसी क्या है? अपोजिट ऑफ द टाइम पीरियड. मीन्स नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम, मतलब
सेकेंड. तो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? एक सेकेंड में या यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट किए, ये है आपका फ्रीक्वेंसी. ओके. सो इन इंडिया में हमारे एसी का फ्रीक्वेंसी कितना है? डू रिमेंबर दिस? 50 hertz. Okay, in India we have frequency of 50 hertz. What does it mean? एक पूरा साइकिल करने के लिए इसको एक और दो बार मतलब अपना डायरेक्शन चेंज करना पड़ा ना. कहीं नेगेटिव से पॉजिटिव में आया, कहीं पॉजिटिव से वापस नेगेटिव में गया, एंड अगेन it is going towards positive. तो many a times this question is being asked. इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, मतलब एक सेकेंड में 50 साइकिल कंप्लीट किए जाते हैं एसी द्वारा. तो नंबर ऑफ ये कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा? नंबर ऑफ डायरेक्शन चेंज पर सेकेंड कितना होगा? फ्रीक्वेंसी तो 50 हर्ट्ज है, मतलब 50 साइकिल्स पूरे हुए, पर एक साइकिल में दो बार, तो नंबर ऑफ डायरेक्शन चेंज पर सेकेंड कितना होता है? 100. इट इज बीइंग आस्क्ड इन दी फाइनल पेपर्स टू. ओके. सो लेट्स सी बिहाइंड. व्हाट इज एसी? इट चेंजेस द डायरेक्शन पीरियोडिकली. पीरियोडिकली मीन्स कुछ फिक्स टाइम पीरियड के बाद में, आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एवरी टाइम उतने डायरेक्शन में ये अपना उतना टाइम में अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है. डीसी करंट, इट डज नॉट चेंज डायरेक्शन विद टाइम, इट इज यूनिडायरेक्शनल. फ्रीक्वेंसी ऑल्टरनेटिंग, अगर ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करें, इट हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इन इंडिया, 60 हर्ट्ज इन अमेरिका. तो अमेरिका में 60 हर्ट्ज है, मतलब 60 साइकिल्स पर सेकेंड. इंडिया में 50 साइकिल्स पर सेकेंड. तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन चेंज की बात करें तो यहाँ 100 है और यहाँ 120. और डीसी में फ्रीक्वेंसी कितना है? 0 हर्ट्ज. इज इट क्लियर? सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी. एसी के एडवांटेजेस क्या हैं डीसी के ऊपर? इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्गर डिस्टेंसेस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी. कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक पावर कैन बी ट्रांसमिटेड टू लॉन्गर डिस्टेंसेस, मतलब एसी का एडवांटेज बता रहा है ये. क्या? अगर हम डायरेक्ट करंट को बहुत दूर पॉइंट पे ट्रांसमिट करना चाहें डायरेक्ट करंट को, तो देयर वुड बी लॉसेस. बट इन अल्टरनेटिंग करंट, व्हेन वी आर ट्रांसमिटिंग power to very long distances, huge distances, then also loss of energy or loss of power is very less. Therefore, cost of transmission is low. Therefore, it is very easy to transmit the AC. इसीलिए पावर प्लांट्स कहीं और होते हैं, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, AC प्रोड्यूस होता है और रेजिडेंस तक पहुंचाया जाता है विदाउट मच लॉस. अगर इतनी दूर डीसी को पहुंचाया जाए तो देयर विल बी ह्यूज लॉसेस. तो डीसी की वैल्यू काफ़ी कम हो जाएगी, जो हम चाहते हैं उससे बहुत रिड्यूस हो जाएगी. ओके. एसी का फर्स्ट बेनिफिट क्या है? इट इज़ वेरी इजी टू ट्रांसमिट एसी विदाउट मच लॉस. सेकेंड, इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज व्हाट? 50 हर्ट्ज. इट मीन्स आफ्टर every 1/100 seconds it changes its direction. मतलब अगर एक सेकंड में पूछते कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो कितनी बार होता? 100 times. we have already seen this. ओके. 100 times एक सेकंड में करता है तो 1/100 हो गया फॉर ईच डायरेक्शन चेंज. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. पे अटेंशन नाउ. We are discussing electric motor. Principle of electric motor is based on the fact that current carrying conductor
produces a what? Magnetic field around it. कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, it produces a magnetic field around it and it experiences what? Force. Okay? और यहाँ याद रखना है आपको कि फॉर इलेक्ट्रिक मोटर वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट, कि मोटर के अंदर, फॉर मोटर कौन सा रूल काम करता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. What does the Fleming's left hand rule says? Left hand rule बोलता है, this is your thumb, forefinger, middle finger, okay? F B I. It is the way to remember. FBI, Federal Bureau of Investigation. Simple. और फादर मदर चाइल्ड कल बताया था हमने, ओके, प्रीवियस वीडियो में बताया है. FBI. सो अगर FBI यहाँ पे हम यूज करें तो कैसे हम निकालेंगे इसके डायरेक्शंस? तो देखें इधर, यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइंड है, ये नॉर्थ है और यहाँ साउथ पोल है मैग्नेट का. तो ऑब्वियसली दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ टू साउथ. इट इज शोन हियर. नाउ ये प्लस और माइनस पे हमने कोई बैटरी या कुछ भी हमने जहाँ पावर दे रहे हैं वो कनेक्ट कर रखा है. तो ऑब्वियसली इस पॉइंट पे करंट किधर जाएगा? इस डायरेक्शन में. और इस पॉइंट पे करंट कैसा आएगा? इस डायरेक्शन में. कॉइल के इस पार्ट में ये क्या है? आर्मेचर या कॉइल? इफ यू वांट टू सी, पहले इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं देख लेते हैं. पावर सोर्स क्या है? अ सिंपल मोटर यूजुअली हैज डीसी पावर सोर्स. इट सप्लाइज पावर टू द मोटर, आर्मेचर और फील्ड कॉइल्स. कम्यूटेटर क्या होता है? इट इज द रोटेटिंग इंटरफेस. इसको बोलते हैं कम्यूटेटर. Commutator, what does it do? It reverses the current. How? We'll see. Commutator is connected to brushes. It is rotating interface of the armature coil. बीच में कॉइल लगाई हमने. फील्ड मैग्नेट्स क्या है? इधर नॉर्थ इधर साउथ, वो फील्ड मैग्नेट्स हैं. दे हेल्प टू प्रोड्यूस अ टॉर्क. व्हाट इज टॉर्क? मैग्नेट्स की वजह से फोर्स लग रहा है. फोर्स की वजह से जब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं तो कोई टॉर्क लग रहा है, मतलब ट्विस्टिंग फोर्स जो उसको घुमाएगा. और यहाँ हम क्या यूज करेंगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. आर्मेचर कोर क्या है? इट होल्ड्स द आर्मेचर कॉइल इन प्लेस एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट. आर्मेचर कॉइल क्या है? इट हेल्प्स द मोटर टू रन. ब्रशेस क्या है? ब्रशेस कनेक्टेड हैं कम्यूटेटर से, जो कंडक्ट करते हैं करंट को बिटवीन वायर्स एंड मूविंग पार्ट्स कम्यूटेटर्स के बीच. ओके, दीज आर द पार्ट्स. यहाँ देख सकते हैं आप, ये एक और डायग्राम है. नॉर्थ टू साउथ, यहाँ देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? इन दिस डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ. यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव. सो करंट विल move in this direction. Okay, is it clear? करंट का डायरेक्शन क्लियर है. ये रेक्टेंगुलर कॉइल है आपकी ए बी सी डी. तो यहाँ पे क्या क्या है? कम्यूटेटर्स, स्प्लिट रिंग्स. स्प्लिट मतलब दो में डिवाइडेड है. इससे कनेक्टेड है ये ब्रशेस. स्प्लिट रिंग्स, ब्रशेस. स्प्लिट रिंग को कम्यूटेटर बोला जाता है. स्प्लिट रिंग, ब्रशेस और उसके आगे रेक्टेंगुलर कॉइल, फील्ड मैग्नेट्स. तो अब इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे इसका डायरेक्शन आएगा, क्या चीज़ होगी. ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रिक मोटर? इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. करंट ले रहा है, करंट ड्राइव कर रहा है इसी को.
और उस करंट से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी. हाउ, लेट्स सी. सो अंडरस्टैंड दिस वन. यहाँ पे इस डायरेक्शन में क्या आ रहा है, करंट. इधर से इधर क्या जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड. सो टेक दिस पार्ट एज A, B, C, D. Okay. A, B, C, D. ये भी मैग्नेटिक फील्ड है. ओके, नाउ पे अटेंशन. अगर हम ए बी पार्ट की बात करें तो फॉर पार्ट ए बी पार्ट कुछ इस तरह का है. यहाँ है पॉइंट ए, यहाँ है पॉइंट बी. ओके, सो ए बी पार्ट में करंट किधर जा रहा है बेटा, इनवर्ड्स. मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर. एफ बी आई, आई किधर है, अंदर, लाइक दिस, इनवर्ड्स, एंड दिस इज लाइक दिस. तो फोर्स किधर आएगा, डाउनवर्ड्स. प्लीज पे अटेंशन. यहां फोर्स कैसा आने वाला है, यहां फोर्स कैसा आने वाला है, डाउनवर्ड्स. सिमिलरली अगर हम लेते हैं ये सी पॉइंट, तो अब बीसी के अंदर क्या हुआ, बीसी के अंदर भी तो करंट जा रहा है, बट इट इज, दिस करंट इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. बट हमने क्या बताया था, फोर्स प्रोड्यूस होने के लिए परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो बीसी में कोई फोर्स प्रोड्यूस नहीं होता है. डू रिमेंबर दिस, मेनी टाइम्स इट इज बीइंग आस्क्ड. नाउ सीडी में वापस करंट कैसा है, इस तरह का. तो अब देखें, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एफ बी आई में भी इधर, करंट आउटवर्ड्स. फोर्स कैसा हुआ, दिस फोर्स एफ बी आई, फोर्स इज अपवर्ड्स. सो लेट्स सी, हियर फोर्स इज व्हाट, upwards. So think of it, there is a plate like this. इस पार्ट पे तो upward force लग रहा है, इस पार्ट पे downward force लग रहा है. तो it will rotate like this, yes or no? तो it will rotate like this. coil ऐसे rotate होगा, इसी को बोलते हैं coil rotates anti clockwise, against the clock. okay? यस और नो. इस तरह से कॉइल रोटेट होती जाती है. और ये पार्ट आधे रोटेशन के बाद ए बी पार्ट इधर पहुंच जाएगा और सी डी पार्ट इधर पहुंच जाएगा. डी टू सी वापस करंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है आफ्टर हाफ रोटेशन. देखो इधर, यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, कम्यूटेटर्स कनेक्टेड है. जैसे ही कम्यूटेटर्स पॉइंट्स बदलते हैं आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन सी डी इधर आ जाता है, ए बी उधर चला जाता है. लेकिन सी डी में अब करंट क्या हो जाएगा, इधर ही आएगा. जैसे वो इधर आएगा, इसमें करंट यहां से आ रहा है, तो ये वाला करंट इसी में आगे ऐसे जाएगा सी डी में. तो भी वो ऐसे ही रोटेट करेगा वापस, क्योंकि फ्लेमिंग्स रेफरेंस रूल बोलता है फोर्स ऐसे ही अप्लाई होगा इधर वाले में, इधर वाले में फोर्स ऐसे अप्लाई होगा. तो इट विल कीप ऑन रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज. एंड इस तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल एनर्जी में. एंड इट कीप्स ऑन रोटेटिंग एंड इट इज प्रोवाइडिंग अस द मैकेनिकल एनर्जी. ओके, हाफ रोटेशन के बाद में भी सी डी पार्ट इधर आ जाएगा, उसमें करंट ऐसे ही फ्लो हो रहा है, तो वो ऐसा ही एक्शन चलता रहेगा. आई होप इट इज क्लियर. ब्रश से वायर कनेक्टेड है, ब्रश से जैसे ही ये कार्बन ब्रश फिक्स्ड है, जैसे ही रिंग R1 B2 के पास जाती है और R2 B1 के पास आती है, तो D2C में करंट इधर और A2B में करंट इधर. फिर भी क्या होगा, रोटेट ये ऐसे ही होगा. इधर आने वाले में फोर्स नीचे, इधर आने वाले में फोर्स ऊपर, एंड इट विल कीप ऑन रोटेटिंग लाइक दिस. तो यहाँ कौन सा रूल लगता है, फ्लेमिंग्स
लेफ्ट हैंड रूल. ओके, वर्किंग क्या है? हम 2 बार मैग्नेट्स लेते हैं. ओके, नाउ टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ अ कंडक्टिंग वायर. कीप दिस लूप इन बिटवीन द स्पेस बिटवीन द मैग्नेट्स such that it is still within the sphere of influence of magnets. Connect the ends of the loop to battery terminal. बैटरी से कनेक्ट करते हैं ताकि उसमें करंट फ्लो हो, और मैग्नेटिक फील्ड पहले ही अरेंज कर दिया है. जैसे ही करंट ऑन हुआ, ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड था, करंट ऑन हो गया तो ऑब्वियसली क्या एक्टिंग में आ जाएगा? फोर्स. मैग्नेटिक फील्ड था, करंट ऑन किया, फोर्स एक्ट में आ जाएगा. वंस द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, देन your loop moves. So why does this happen? The magnetic field of the magnets interfere with the electric current. कौन कौन इंटरफेयर कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड मतलब B एंड करंट I. B और I इंटरफेयर करके क्या प्रोड्यूस करेंगे? Since the loop has become a magnet, one side of it will be attracted to the north pole and other to the south pole. This causes the loop to continuously रोटेट. रोटेट मीन्स वहाँ क्या था? फोर्स. फोर्स की वजह से क्या आया था वहाँ? टॉर्क. फोर्स की वजह से क्या आया? टॉर्क आया. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. इलेक्ट्रिक करंट से टॉर्क प्रोड्यूस, फोर्स प्रोड्यूस हुआ, फोर्स से करंट आया, करंट की वजह से, वापस सुनो, मैग्नेटिक फील्ड अरेंज किया, करंट फ्लो करवाया, फोर्स एक्ट में आया. मैग्नेटिक फील्ड, करंट, फोर्स. फोर्स की वजह से उस पर अलग अलग एंड पे अलग अलग इफेक्ट रहा, तो टॉर्क आया, ट्विस्ट आया, उसकी वजह से वो रोटेट कर रहा है. रोटेट करने की वजह से क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई. इट कीप्स ऑन रोटेटिंग एंड वो मैकेनिकल एनर्जी से जो हम अपना काम करना चाहते हैं उसमें वो हेल्प करती है. ऑलराइट, this is it for now. We'll discuss the subsequent topics. I hope it is clear. इलेक्ट्रिक मोटर आपको क्लियरली समझ में आया है कि किस रूल पे काम करता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे, और क्या क्या इसके पार्ट्स हैं, कैसे रोटेट करता है, कैसे कन्वर्ट करता है, एसी करंट डीसी करंट में डिफरेंस क्या है. थैंक यू गाइस. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.